Hello everyone, welcome to my YouTube channel Agri Step Up. In this video, we will discuss about concept of soil and its definitions. Definition of soil by different scientists like Dokuchev, Jove and Marbut, Buckman and Brady, Janey, Whitney and Hilgard. And two concepts of soil, that is pedological concept and edaphological concept. And components of soil, that is mineral or inorganic matter, organic matter, soil air and soil water. Concept of soil and its definitions. When soil is used as a verb, it means to make dirty. But when it is used as a noun, soil is derived from Latin word solum, which means floor or ground. Definition of soil also vary person to person depending on their purpose. Like for potter, soil is a material from which any sculpture or arts can be made. And for farmer, upper crust in which plants can survive is soil. And for economist, it is simply land. For geologist, soil is fragmented rock, and for soil scientist, it is soil. In a scientific way, soil is a natural, unconsolidated means loosely arranged mineral or organic matter. It is a three-dimensional body on the surface of earth that supports plant growth and has properties due to combined effect of climate and vegetation. अब आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ soil is a natural body, because soil evolves over a long time in a place through natural processes like weathering, following natural laws like compression, expansion, under natural conditions, that is natural environmental condition, from natural material like rocks and minerals. So soil is called as a natural body. Definitions of soil by different scientists. According to Dr. Chev, who is a soil scientist, soil is a natural body composed of mineral and organic constituents having a definite genesis and distinct nature of its own. Means डॉकुचेव जो है वो सॉइल के जेनेसिस पे फोकस करते हैं, मतलब सॉइल कैसे कंपोज हुआ है, मीन्स ये कंपोज ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स. According to Zoff and Marbut, soil is a natural body developed by natural forces acted on natural materials. It is usually differentiated into horizons. Horizon means different distinct layer in soil profile. We will discuss in next video about soil horizon and soil profile. From minerals and organic constituents of variable depth which differs from parent material below in morphology, physical properties and constituents, chemical properties and composition and biological characteristics. जैसे ये एक सॉइल प्रोफाइल है, तो इसमें जो होराइज़न होंगे, मतलब डिफरेंट डिस्टिंक्ट लेयर, वो वेरिएबल डेप्थ के होंगे और सब होराइज़न का कुछ जो है प्रॉपर्टीज़ जो हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, कंपोजिशन है, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, सब वो अलग होता है. और सबसे जो नीचे होते हैं पेरेंट मटेरियल, सब जो जितने होराइज़न है सब के पेरेंट मटेरियल से ही डिराइव हुए हैं. Now according to Buckman and Brady, soil is dynamic natural body on surface of earth in which plant grow, composed of minerals, organic materials and living forms. मीन्स सॉइल डायनेमिक बॉडी है. डायनेमिक मतलब लाइफलेस और स्टैटिक नहीं है. ये डायनेमिक है, मतलब इसमें बहुत से फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होते रहती हैं. According to Jenny, soil is a natural body that has been evolved owing to combined influence of climate and other organisms acting on parent materials as conditioned by relief over a period of time. According to Jenny, soil is a function of climate, relief,
parent material, organisms and time. मीन्स सॉइल का जो इवोल्यूशन हुआ है इन सब चीज़ों की वजह से हुआ है. मीन्स सॉइल का जो इवोल्यूशन हुआ है उसमें पेरेंट मटेरियल पर रिलीफ, क्लाइमेट, ऑर्गेनिजम्स एंड टाइम का बहुत बड़ा रोल है. सभी फैक्टर के कारण ही सॉइल का इवोल्यूशन हुआ है. According to Whitney, soil is a nutrient being which provides all the nutrient required for plant growth. Nutrient beings means it is a storehouse of nutrients. Soil is a storehouse of nutrients. According to Hilgard, soil is more or less loose and friable material in which plants, by means of their roots, find a foothold for nourishment as well as for other conditions of growth. Now, two basic concepts of soil. First, soil is a natural body, biochem weathered and synthesized product of nature. And second concept is soil is natural habitat for plants and other organisms. तो जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट में हम बात कर रहे हैं कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, ठीक है, और सेकंड कॉन्सेप्ट में हम प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म मतलब लाइफ की बात कर रहे हैं. तो इससे एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है और इससे भी एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है. तो फर्स्ट इज पीडोलॉजिकल कॉन्सेप्ट. ग्रीक वर्ड पीडोन मीन्स सॉइल और अर्थ. तो पीडोलॉजिकल कॉन्सेप्ट फोकसेस ऑन फॉर्मेशन दैट इज जेनेसिस, description that is morphology and classification of soil in their natural environment. पीडोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में हम पढ़ते हैं सॉइल के फॉर्मेशन के बारे में, उसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में और सॉइल के क्लासिफिकेशन के बारे में. फॉर एग्जांपल वेदरिंग प्रोसेस. तो वेदरिंग प्रोसेस हम पीडोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़ेंगे. एंड सेकेंड कॉन्सेप्ट इज इडेफोलॉजिकल कॉन्सेप्ट. ग्रीक वर्ड इडेफोज मीन्स सॉइल और ग्राउंड. In this, we study about influence of soil on plants, fungi, and other living organisms, and soil as supporter of life. Means इडोफोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में हम पढ़ते हैं कि मतलब सॉइल में क्या इसका इन्फ्लुएंस है. मीन्स सॉइल का क्या इन्फ्लुएंस है सॉइल ऑर्गेनिजम्स पे, प्लांट्स, फंजाई पे. मतलब इसमें हम सपोर्टर ऑफ लाइफ के रूप में सॉइल को देख रहे हैं. तो इसमें हम जैसे कि एग्जांपल के में क्या पढ़ते हैं, न्यूट्रिएंट इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट ग्रोथ, न्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ेंगे. तो ये कॉन्सेप्ट दिया गया था जस्टिस वॉन लिबिक के द्वारा, और जो पीडोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है वो डॉकुचेव के द्वारा दिया गया था. क्या कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल. तो सॉइल के कंपोनेंट है मिनरल दैट इज़ इनऑर्गेनिक मटेरियल. मिनरल जो होते हैं वो 45% होते हैं. ये वॉल्यूम पे दिया गया है, वॉल्यूम के बेसिस पे, नॉट बाय वेट. तो 45% जो होते हैं सॉइल के वॉल्यूम जो है वो इनऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, वो मिनरल्स होते हैं. और 5% जो होते हैं वो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं. मतलब 50% जो है वो सॉइल सॉलिड है. ये जो 50% है वो सॉइल सॉलिड है, और जो बाकी के 50% है वो सॉइल वॉइड है. मतलब वो स्पेस जो है वो खाली है, पोर स्पेसेस हैं वो. और उसमें भी वॉइड में 25% एयर होते हैं और 25% वाटर. तो सॉइल एयर और सॉइल वाटर के बीच में ऐसे जो फ्लक्चुएशन दिखाया गया है, मीन्स इट फ्लक्चुएट्स कॉन्टिन्यूसली. मतलब कभी एयर का परसेंटेज अगर ज़्यादा होगा तो सॉइल एयर जो वाटर है उसका परसेंटेज कम हो जाएगा, और वैसे वैसा. मीन्स अगर सॉइल वाटर ज़्यादा हो जाएगा पोर स्पेस में तो सॉइल एयर कम हो जाएगा. It fluctuates continuously. During rainy season, water replaces air from the soil pore spaces, but as soon as water disappeared by downward movement, surface evaporation and transpiration, etc., air gradually replaces the water as it is lost from the pore spaces. Means जब रेनी सीज़न में वाटर जो है सॉइल पोर में भर जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ उस टाइम रेनी सीज़न में पोर स्पेस में ज़्यादा वाटर का अमाउंट देखने को मिलता है और एयर कम हो जाता है. और जब ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ता है या फिर डाउनवर्ड मूवमेंट जो है वाटर का बढ़ता है, तो जो है सॉइल एयर का परसेंटेज बढ़ जाता है और सॉइल वाटर का परसेंटेज घट जाता है.
और एक चीज़ आपको याद रखना है कि जो 25% ऑफ एयर और 25% जो वाटर है, ये ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, मतलब प्लांट के ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए ये इसेंशियल कंडीशन है, लेकिन कि ये वेरी करता है। यहाँ जो है सॉइल, एयर और एटमॉस्फेयर में डिफरेंट गैसेस के परसेंटेज को दिखाया गया है। तो आप देख रहे हैं कि जो एटमॉस्फेयर में 79% जो है नाइट्रोजन है, और सॉइल एयर में 79.2% नाइट्रोजन है। मतलब सॉइल एयर में नाइट्रोजन का परसेंटेज ज़्यादा है, और ऑक्सीजन का परसेंटेज जो है वो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है। और कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज यहाँ देखिए तो वो सॉइल एयर में ज़्यादा है। ठीक है, सॉइल एयर में 0.25% कार्बन डाइऑक्साइड है, और जो एटमॉस्फेयर में 0.04% है। So soil air contains much more CO2 and a small amount of oxygen than that of atmospheric air due to microbial respiration. माइक्रोबियल रेस्पिरेशन के कारण ये परसेंटेज में डिफरेंस देखने को मिल रहा है। बिकॉज कि जो सॉइल है, सॉइल में सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं, और माइक्रोबियल रेस्पिरेशन के कारण वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो रेस्पिरेशन करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसलिए CO2 का परसेंटेज जो होता है वो ज़्यादा होता है सॉइल एयर में, और ऑक्सीजन का परसेंटेज कम होता है। तो सॉइल का जो कॉम्पोजिशन था उसमें था पहला जो 45% वॉल्यूम के अकॉर्डिंग जो था वो मिनरल मैटर था। तो इट इज़ composed ऑफ रॉक फ्रेगमेंट्स। साइज एंड composition ऑफ मिनरल वैरी ड्यू टू नेचर ऑफ पेरेंट रॉक फ्रॉम विच इट इज़ derived. फॉर एग्जाम्पल feldspar, quartz. Second is organic matter. It is partly decayed and partly synthesized plant and animal residue. It is storehouse of nutrient in soil. सो इट इज़ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर में न्यूट्रिएंट जो है होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, वो स्टोर हाउस है न्यूट्रिएंट का ऑर्गेनिक मैटर। एंड ऑर्गेनिक मैटर एक्ट्स एज चिलेट आप लोगों ने पढ़ा होगा कि चिलेट क्या होता है? एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कैन बाउंड टू एनी मेटल बाय मोर देन वन बॉन्ड एंड फॉर्म्स अ रिंग और साइक्लिक स्ट्रक्चर बाय दैट बॉन्डिंग। मीन्स ऑर्गेनिक मैटर वो बाइंड करते हैं कोई भी मेटल के साथ और एक से ज़्यादा बॉन्ड के साथ, और साइक्लिक और रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। इसी को चिलेट कहा जाता है। तो चिलेट फॉर्मेशन से उस पर्टिकुलर मेटल की अवेलेबिलिटी प्लांट के लिए बढ़ जाती है, जिस मेटल से ऑर्गेनिक मैटर बाइंड किया है। तो इससे प्लांट ग्रोथ भी अच्छा होता है। इसके अलावा ऑर्गेनिक मैटर डिक्रीजेस सॉइल इरोजन। कैसे कह सकते हैं कि सॉइल इरोजन घटाता है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि ऑर्गेनिक मैटर अगर बढ़ता है तो इससे एरेशन भी अच्छा होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ता है, चिलेट का काम करता है, यानी कि न्यूट्रिएंट का अवेलेबिलिटी बढ़ता है, मतलब प्लांट ग्रो कर पाता है अच्छे से। इसलिए सॉइल इरोजन को इस तरह से वो घटाता है। थर्ड इज सॉइल वाटर. It plays significant role in plant growth. It present along with dissolved salt and make up the soil solution. Soil solution act as an important medium for supplying different essential nutrient to plants. Fourth is soil air. Air spaces or pore spaces voids in a soil consist of that portion of soil volume not occupied by soil solid. Means मतलब जितने भी सॉइल में स्पेस हैं, सॉइल सॉलिड को छोड़ के, सॉइल एयर को छोड़ के, बाकी सॉइल एयर हैं। तो इट इज़ रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉइल एयर एंड वाटर इन द पोर स्पेसेस फ्लक्चुएट कंटिन्यूसली। हम लोगों ने पढ़ा था अभी कि सॉइल एयर और वाटर जो है वो फ्लक्चुएट करता है, दोनों का रेशियो। सॉइल एयर कंटेन्स नंबर ऑफ गैसेस, वो हम लोगों ने देखा अभी कि उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, बहुत से गैसेस प्रेजेंट होते हैं सॉइल एयर में। पीडोस्फेयर का मतलब होता है सॉइल। ठीक है, तो सॉइल और पीडोस्फेयर रिप्रेजेंट द क्रिटिकल जोन ऑफ अर्थ वेयर बायोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड लिथोस्फेयर इंटरसेक्ट एंड इंटरैक्ट। मीन्स जहाँ लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर इंटरैक्ट करते हैं, वहीं वो कौन सा पोजीशन है? पीडोस्फेयर।
तो पीडोस्फेयर में सारे जन इंटरेक्ट करते हैं, तभी तो सॉइल में है जो लाइफ पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से गैसेस प्रेजेंट है, एटमॉस्फेरिक गैसेस बायोस्फेयर से इंटरेक्ट हो रहा है यहाँ पे, तो इसलिए जो है पीडोस्फेयर में ही लाइफ पॉसिबल है। मतलब यहाँ ऑप्टिमम कंडीशन है, ऐसा नहीं है कि एटमॉस्फेयर में मतलब पॉसिबल नहीं है। एटमॉस्फेयर में बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर सब जगह होते हैं, लेकिन पीडोस्फेयर जो है वो सॉइल जो है वो ऑप्टिमम कंडीशन है ग्रोथ के लिए, प्लांट्स के ग्रोथ के लिए। थैंक यू एवरीवन।